we can see how we can prepare, what are the properties of acid, how it reacts with active metals, how it reacts with base, how it reacts with carbonate, how it reacts with sulfite and sulfide. All this we have checked yesterday. Now, children, in your course, in your half-yearly course, HCl acid is there, hydrochlorine chloric acid. Hydrogen chloride gas is also there, and hydrochloric acid is also there. So hydrochloric acid will behave exactly like a dilute acid, as I have told yesterday. In all my examples, wherever I have given HCl, it is fine. If I have taken the example of some other acid, if you put up HCl over there, you will get the equation. In your course also, sulfuric acid is there in the course. So HCl acid, sulfuric acid or nitric acid, if they are in dilute form, they are going to more or less, they are going to behave in a same fashion. Nitric acid, in some cases, it will behave in a different way, but more or less, it will have a similar behavior. Now, in your notes, I have given the property of the chemical properties of HCl, also dilute HCl, the chemical property of dilute H2SO4, and the chemical property of dilute nitric acid also with this acid chapter. So when you are writing, you have to learn that also. It will be not asked, it is suppose in the half-yearly examination, if you get an equation of sulfuric acid, at that time you will not say, ma'am, it is out of course. It is very much within the course. Acid means acid. और वो एसिड, चूंकि 3 एसिड्स आपके कोर्स में हैं, वो तीनों एसिड्स के रिएक्शंस आपको याद करने हैं. जो आपका वो है, दैट इज योर जो फ्रेमवर्क है, जिसको मैंने बॉक्स की तरह बनाया है, दैट हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट. टुडे वी विल बी डूइंग bases. Now bases are the compounds which on dissolving in water gives out hydroxyl, OH to the power minus, as the only anion. Bases, again I am repeating, bases are the compounds which on dissolving in water gives you one metal ion plus OH ion to the power minus as the only negative ion. वहां पे क्या था, H as the only positive ion, यहाँ पे just opposite, OH as the only negative ion. और इसमें क्या, how these bases are made? Bases are actually made up by metals. Acids were made up by non-metals. Bases are made up by metals, and either you take metal oxide, that is also a base. How will you prepare metal oxide? Metal plus oxygen, burn them. Or metal hydroxide. Preparation I will tell you later on. Now let us see what are the classifications. So, as I said, bases, these are the compounds when you dissolve in water will give you a metal and hydroxyl ion as the only negative ion. Now bases could be two, metal oxides and metal hydroxide. In the case of acids, we have seen that acids are made up by hydrogen and non-metal, or hydrogen, non-metal and oxygen. So here non-metal and here metal. This is the difference. On the basis of solubility, we can divide it into two groups, insoluble bases. Now when we talk about insoluble bases, we have to keep in mind again the reactivity. So reactivity is becoming less and less as you come down. So the top active metals are potassium and sodium. In class 9 you have studied that how water in potassium and sodium, they quickly dissolve. You don't have to do anything. Immediately they will dissolve. So all the oxides and hydroxides made up by these two, potassium, sodium, and one more, that is ammonium, they are going to be soluble. They are going to be soluble. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, with this sodium oxide and potassium oxide also. Ammonium oxide cannot be there.
So all these are going to be soluble, and you will call them as alkalis. The rest all, मतलब right from calcium थोड़ा सा sparingly soluble. If you take calcium hydroxide, ये थोड़ा सा soluble होगा, misty droplets will be made. बाकी आप magnesium से लेके copper तक चले जाएंगे, आपको everything you will get in insoluble base form. So either you take their oxide, suppose take ZNO or Zn hydroxide. ये सारे bases कहलाएंगे. So in this we can understand that all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. सारे alkali bases हैं, लेकिन सारे उसमें कुछ bases insoluble bases भी हैं और कुछ soluble alkalis. Second, how you can classify on the basis of strength. जैसे आपने acid में देखा कि कुछ एसिड बहुत स्ट्रांग है और कुछ वीक है, इसमें भी वही है, कुछ बहुत ही स्ट्रांग है और कुछ जो है वीक है. सो जो स्ट्रांग वाले होंगे वो कंप्लीट आयोनाइजेशन होंगे. अगर आपने कोई भी बेस लिया, जैसे आपने NaOH ले लिया, ये स्ट्रांग एल्कली है, बहुत स्ट्रांग. तो ये सारा अगर तुमने 1 ग्राम लिया, 1 ml लिया, 1000 ड्रॉप्स लिया, या मान लो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स लिए, सारे के सारे कंप्लीट आयोनाइजेशन होके और ढेर सारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन. एसिड वाले में हमने क्या देखा था कि वहां पे मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. इनको हम स्ट्रांग होंगे. वीक वाले में ऑब्वियसली इनका अगर हमने ले लिया, जैसे मान लो अगर हमने लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वीक, ये बेस है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होंगे, कुछ होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही रहेंगे. तो इनका इनके इनके सोल्यूशन में क्या मिलेगा? लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन. एसिडिटी, एसिडिटी क्या है, क्या बला है? एसिडिटी है कि इफ यू टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे आपने यहाँ पे लिया NaOH लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे सिर्फ एक एसिड्स में इसको हम बेसिसिटी बोलते हैं. अभी नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? वॉइस इज क्लियर? ओके. सो एसिडिटी जो है वो बेस में हम उसको एसिडिटी बोलते हैं, और एसिड के टाइम में हम उसको बेसिसिटी बोलते हैं कि दैट नंबर ऑफ H आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल. बेस में हम क्या बोलेंगे? उसको एसिडिटी बोलेंगे, यानी द नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ. बेटा चिल्ड्रन यू ऑल पे अटेंशन प्लीज. अगेन एंड अगेन हम नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम मिलता है मुझे. I am telling you what is acidity. If one molecule of the base is dissolved in water, the number of OH ion released by it is known as its acidity. Here NaOH is going to produce only one OH ion, so definitely its acidity will be monoacidic. If you take CaOH whole twice or copper hydroxide, its number of OH ion is 2. So when you will dissolve it in water, it will give you 2 hydroxyl ion. So therefore its acidity will be 2. Similarly, triacidic bases are going to give you 3 ions of hydroxyl when you dissolve them in water. Always you remember that they are not going to give you OH like that only. Unless you dissolve them in water, they are not going to give you. So AlOH thrice, acidity is tri. CuOH whole twice, acidity is di. And NaOH, acidity is mono. Very simple. Apart of that, it has got one more classification, that is, as we have done it for acids also, here
concentration and dilute. Concentration where less water is present and dilute where more water is present. Now let us see how are we going to prepare that. As I told you that your metals, if you just burn them, if you burn them, a small heat is given to it and it will convert into metal oxide. It is a base. Let us see. Now in this reactivity series, children always remember the high ones, potassium और sodium, इनको आग दिखाने की जरूरत ही नहीं है, माचिस की तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं है. They are very very reactive. The moment you keep them in the air, immediately it catches air. So if you take sodium and oxygen, it makes sodium peroxide because they are highly reactive. If you take potassium, definitely you have to your you have to show the light or the flame, and it will burn with flame and it will produce white ashes of MQ. Now the second one, this is one method by how you can. Now can you burn iron? Can you burn iron? Can you burn lead? Iron also you can burn when you are making it because now the reactivity has reduced a lot. So if you make temperature very high and then oxygen gas is passed through it, then you can see that it can give you the oxides. The next process, when you take a reactive metal, again what are the reactive metals? Potassium, sodium. So potassium and sodium, when you take a reactive metal and you dissolve it in water, you are dissolving it in water, it will give you an alkali and hydrogen gas will be released. So in this case, we can take this. You have done in the last class, in class 9th, when you were doing water chapter. Water chapter में आपने सोडियम डाला और पोटेशियम डाला तो क्या होता है, पूरा फिज करता है, इधर उधर डार्ट करता है, दौड़ता भागता है, धीरे धीरे छोटा सा ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है. और हाइड्रोजन चैप्टर में भी है, वाटर चैप्टर में भी है, हाइड्रोजन चैप्टर में भी है. So sodium and potassium, they are the reactive metals. You can get the hydroxide, the alkalis you will get. Let us see the third method. Third method, we will take, wait a minute, yeah. The metal oxide we take, and this metal oxide, you can dissolve in water and you will get either base or alkali. Now when you will take an active oxide, such as your sodium oxide, you will get alkali. But if you are taking calcium oxide, or even if you take copper oxide, you will get a base. You will get a base. Here CuOH whole twice. You will get a base. Now, and bases doesn't dissolve in water. Now the next is double decomposition. What do you mean by double decomposition? See, every compound is made up by two parts, A, B. Here I have taken another compound which is made up by two parts, C, T. This is metal part and this is non-metal part. This is metal part and this is non-metal part. अगर ये non-metal part का अदला बदली हो, यानी B आपका इधर आ जाए और D आपका इधर चला जाए, तो ये बनेगा AD और CB. This type of reaction is called as double decomposition. यहाँ पे AB की जगह मैंने एक salt लिया. ये salt किससे बना हुआ है? दो पार्ट से, metal और non-metal, metal non-metal, metal non-metal. ये सब आपका radicals है, so core radical है. ये आपका एलिमेंट है. और CD जो लिया वो मैंने alkali लिया, salt and alkali. तो salt and alkali will give you salt and base. तो ये आपका जो alkali है, या तो NaOH लो, या KOH लो, या NH4OH. alkali में बस ये तीनों ही मैंने बताया है, ये तीनों ही सिर्फ alkalis हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप अवॉइड करेंगे alkali बताने में. कुछ किताब आपको बताएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन alkali. It is not a good alkali because it is sparingly soluble. तो क्या होगा कि ये Cl आपका Na के साथ आके जुड़ेगा, ये OH आपका इधर जाएगा, तो FeOH3 ये आपका बेस बनाएगा. चूंकि ये बेस है, इनसॉल्युबल है, तो ये PPT बनाएगा, FeOH whole thrice. इसका एक कलर है, इसका कलर आपका है रेडिश ब्राउन.
इसका कलर है ग्रीनिश, डर्टी ग्रीन, इसका कलर है आपका व्हाइटिश ब्लू। तो ये प्रैक्टिकल में एक्चुअली आपको करना है, जो आप लोग मिस कर रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज आपका प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है, एग्जाम में भी आएगा। अच्छा, और ये क्या है आपका, ये जो आपका बना, ये मैंने बताया कि ये Na के साथ ये Cl आके जुड़ेगा, तो दिस विल बी 3NaCl। FeOH, इस तरह के रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करना है। FeCl3 plus 3NaOH, FeOH whole thrice plus 3NaCl। अभी समझने में बड़ा अच्छा लग रहा है, डबल डिकम्पोजिशन है, कुछ तो करना ही नहीं है, लेकिन आप जब याद करेंगे किताब से या मेरे नोट से, तो पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में याद करेंगे। डू नॉट लीव इट फॉर द क्लासरूम सिचुएशन और फॉर द टेस्ट सिचुएशन, वहां पे आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये आपका फोर्थ मेथड हो गया बाय डबल डिकम्पोजिशन। ये आपका एक बेस आप बना रहे हैं, एक दूसरे बेस से, दूसरे एल्कली से आप बेस बना रहे हैं। तीसरा है, हम कोई भी मेटल सल्फाइड ले लें, सल्फाइड यानी कि S⁻⁻²। तो ये हमने सल्फाइड ले लिया, ऑक्सीजन से जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे और थोड़ा टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो दिस विल बर्न, एंड दिस विल बर्न टू गिव यू MO, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेस है, और SO2 गैस निकलेगा। ये SO2 गैस इज हाईली पॉइजनस गैस। ZnS plus O2, ZnO plus SO2। ये एक तरीका हो गया कि आप मेटल सल्फाइड व्हेन यू आर हीटिंग, यू आर गेटिंग अ बेस। Similarly, and this will actually come in your thermal decomposition. This is actually not thermal decomposition. This will be, you can write it down also, thermal when we are heating MnO3, we are getting MO plus NO2 plus O2. This NO2 is actually, it is given by the thermal decomposition of MnO3. We are heating it, and this MO is actually a base. This is a base. So we can take calcium nitrate right from potassium till copper. We can do this reaction. यहाँ से लेके यहाँ तक आप नाइट्रेट्स को गर्म करके आपको बेस मिलेगा, चाहे कार्बोनेट्स को गर्म करके बेस मिलेगा। और चिल्ड्रन, you have done this type of reactions in your 9th class practical, यानी कि 9th class का practical भी very important। आपके पास रफ कॉपी होगी, वो रफ कॉपी को बहुत अच्छे से एक बार बैठ के सब चेक करना, क्या लिखा है सारे गैसेस के, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, that also you are going to learn, mug up, because it is all going to come for your examination. In section A 40 marks question इसी टाइप के क्वेश्चंस को दिया जाए। So these are 7 methods by which we get the base. Now let us see the properties of your bases. So let us see the physical properties. The physical properties of bases are, I am getting a very important call, so but I will not, I did not want to get disturbed in between, but it is a very important official call from the school. Properties. Yeah, already what I have sent you. See, whatever I am sending after the class, ये सारे जो notes मैं जो black board में लिखती, वो मैं black board तो है नहीं, इसलिए मुझे यहाँ लिख के तुम लोग को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे मैं तुम लोग को समझाऊं, कैसे मैं बताऊं, कैसे हाउ टू एक्सप्लेन इट। फॉर मी ऑल्सो इट इज अ चैलेंज, बट द नोट्स जो मैंने बताया है, नोट्स में आपको एक सलीके से सब लिखा हुआ है, एंड दैट ये वाला जो है, इसको सिर्फ पढ़ते समय एक बार तुम लोग देखते समय तुम लोग कर सकते हो, नोट्स के साथ टैली कर
कि क्या मैम ने जो बताया है वो नोट्स में इंक्लूडेड है कि नहीं है। नाउ देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लें, दोनों का कंपेयर कर लें। एसिड जो है दैट इज सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है। सारे एसिड्स यानी कि आपके किचन में भी जो भी सामान खट्टा है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, दे आर ऑल एसिड्स। ठीक उल्टा बेस में क्या है, ऑल दैट विच इज बिटर, कड़वा है, दे आर ऑल बेसिस। Acid is highly corrosive. Highly corrosive. I will not do screen sharing. I'm not comfortable with that. Somebody is telling me to screen share. I am not comfortable with that. So I will not do that. So, uh, in that sauce is, somebody is asking me sauce is acidic or basic. Children, sauce is made up by tomato. So what it will be? The tomato is acid. No, it contains acid. Now all that which is having a sour taste, forget about ये है कि नहीं वो है, कमर्शियल चीजें मत पूछना शुरू करो। कोई भी दुनिया की चीज अगर वो सार है, खट्टा है, तो वो एसिड कंटेन करता है। यहाँ तक कि प्याज में, एप्पल में, सब में एसिड है। खुरदुरा या आपका जला है स्क्रीन को। एसिड बहुत ज्यादा करोसिव है और बेस थोड़ा माइल्ड करोसिव है। जितना आप जैसे एल्कलीज को आप लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, वो ज्यादा करोसिव होंगे। जितने आप नीचे उतरते चले जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत जो वीक वाले बेसिस हैं या वीक एल्कलीज हैं, ये कम आपके माइल्ड हुए एल्कलीज को होंगे। अब आपका जो साबुन बनता है, साबुन सारे जो है स्लिपरी हैं, तो ये भी एक फीचर है बेसिस का, दे ऑल आर स्लिपरी इन टच। तो सारे जो साबुन है, चाहे तुम वो महंगा से महंगा साबुन ले लो, डव ले लो, ग्लिसरीन ले लो, या सिक्का साबुन ले लो, या बर्तन धोने वाला साबुन ले लो, इन सबों में आपका बेसिस एडिंग किया जाता है, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश आपका डाला जाता है। अब किसी में जो उसमें जो ऑयल एक डालते हैं, वो ऑयल वैरी करता है कि साबुन का सोप की क्वालिटी क्या रहेगी। इसलिए एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें दिखाता है कि पीएच वैल्यू से वो दिखाते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट पीएच वैल्यू आल्सो। So this is all that property. All the bases, the good ones and the acids which are good ones, they are both are good electrolytes. मतलब they will allow the electricity to pass through them. All of them are, either you take acids or bases, they are good conductors of electricity. All of them are having good ionic distribution. When a dipole nature is there, if you dissolve them in water, they are going to dissociate into cation and anion. तो इसमें दोनों के नेचर्स इसमें वो करता है। डिफरेंसेस क्या है, वो बना है नॉन मेटल से एसिड, और बेस बना है मेटल से। मेटल ऑक्साइड है या मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, और बेसिस क्या है, हाइड्रो नॉन मेटल है या हाइड्रो नॉन मेटल ऑक्साइड है। सो अब आप देखिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग एल्कली में, स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एल्कली आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर आपने CO2 को पास किया, CO2 को आपने अलाउ किया, पास किया, तो दिस विल गिव यू मेटल कार्बोनेट और वाटर। मेटल कार्बोनेट एंड वाटर, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। वी कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो and CO2, you will get Na2CO3 and water. If I take 2KOH plus CO2, you will get K2CO3 plus water. अगला है आपका न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन पहले ही हम लोगों ने एसिड पोर्शन में हम लोग कवर किए हैं। बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। सो यू कैन टेक बेस, you can take alkali also, and you can take base also. NaOH plus HCl will give you NaCl plus H2O. CaOH whole twice plus 2HCl will give you CaCl2 plus H2O. So this is neutralization. ये दूसरा केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी आ जाओ, डबल डिकम्पोजिशन। सॉल्ट प्लस बेस और एल्कली। अगर ये देखो डबल डिकम्पोजिशन, फिर वही चीज है जो हम लोगों ने पीछे जो प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने किया है। एक सॉल्ट ले लिया है, एक एल्कली ले लिया है। सॉल्ट और एल्कली आपको देगा सॉल्ट और बेस। इसमें से एक बेस जो है आपको ये हो क्या, दिस इज वन ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड आल्सो। सो अब जो है अगला जो है आपका अमोनिया। In place of, if you take HCl, what will you get? You will get sodium sulfate. You will get sodium sulfate.
I don't know why my voice is echoing. Maybe is my voice echoing to everybody? Is my voice echoing to everybody? वो I think ये thing I think this is for a network problem for somebody. Okay, 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 children, fine, fine. Thank you, thank you, thank you. Okay, now listen, listen, children. Now, when you take salt and alkali, और आपको मिल रहा है salt और base, देखो बहुत ध्यान से समझो. यहाँ पे हम ले रहे हैं salt और alkali या salt और base, हमें मिल रहा है दूसरा salt और दूसरा base, यानी कि double decomposition. लेकिन ये salt अगर हम अमोनियम सॉल्ट ले लें, अमोनियम सॉल्ट जो अमोनिया से बना, जैसे NH4Cl ले लें, या अमोनियम अमोनियम सल्फेट ले लें, ये भी अमोनियम सॉल्ट है. उस समय हमको यहाँ पे अगर हम ये अमोनियम सॉल्ट ले लें तो हमें सॉल्ट और बेस नहीं मिलेगा, तब मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस. क्यों अमोनिया गैस मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सॉल्ट लिया है वो खास तरह का लिया है, वो अमोनियम सॉल्ट लिया है. यानी यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है. हम सिर्फ जब नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं तब हमें डबल डिकम्पोजिशन होता है, यानी सॉल्ट प्लस बेस, सॉल्ट प्लस बेस. तो ये चीज बेटा बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग. अगला चैप्टर आप लोग का आगे पढ़ना है आपको अमोनिया भी. तो दिस इज वन ऑफ द मेथड. यू कैन टेक अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, अमोनियम क्लोराइड प्लस KOH, तो आपको क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O प्लस NH3. अगर आपने KOH लिया तो यहाँ KCl मिलेगा, H2O प्लस NH3. अगर आपने अमोनियम सल्फेट लिया है और NaOH लिया है तो आपको ये मिलेगा सोडियम सल्फेट, वाटर. अगर आपने KOH लिया है तो K2SO4, H2O प्लस NH3. तो प्रोसेस जो है, स्केलेटन रिएक्शन है, वो सिमिलर होता है. अच्छा, अब आप आइए, अब आपने एसिड और बेस दोनों को पढ़ लिया. तुम लोगों ने हर मेथड में देखा है, हर जगह देखा है कि सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट बन रहा है, ये यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है. तो क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट क्या बला है, सॉल्ट क्या बला है. ये समझने के लिए उसके पहले चलो हम लोग थोड़ा सा पीएच स्केल कर लें. व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल आपका जो है, पीएच क्या है? अब आप ये समझ में आ गया कि एक्वस सोल्यूशन में अगर H आयन ज्यादा है दैट इज एसिड. एक्वस में अगर H ज्यादा है तो वो एसिड है, OH ज्यादा है तो वो बेस है. H और OH मिला के H2O बनता है. यानी कि किसी भी सोल्यूशन में अगर H ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, OH ज्यादा है तो वो बेस हो गया. इसी को आपको निकाला, इस वैल्यू को, जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, माने आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम बोलते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. पीएच जो है 7 पीएच, इसको जो है अगर पीएच स्केल, इसको नापने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं. ये पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक है, 0 से 14 तक. इसका जो सेंटर पार्ट माना गया है उसको 7 को माना गया, यानी कि वो सारे आपके सोल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू, यानी कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, अगर उसकी वैल्यू अगर आपका 7 होगा तो वो न्यूट्रल माना जाएगा. न्यूट्रल यानी कि उसका H आयन और OH आयन सिमिलर है, एकदम इक्वल है. अगर 7 से नीचे है 1 तक, अगर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो माना जाएगा पीएच स्केल. मैंने बोला कि एक ऐसा स्केल है जो आपके किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये बताता है. क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है तो वो बेसिक हो गया, यानी कि उसका OH ज्यादा है, और अगर H ज्यादा है तो वो एसिड है. तो अगर मान लीजिए कि पीएच स्केल को अगर हम देखते हैं तो वो एक जैसा आपका स्केल है, आपके घर में भी आपके पास मैथमेटिक्स करने के लिए स्केल होता है, तो दिमाग में रखो कि ये एक ऐसा ही स्केल है. इस स्केल की वैल्यू 14 तक जाती है, 0 से लेके 14 तक. 7 को सेंटर लाइन माना गया है. इसको माना गया है कि ये इन बिटवीन एक ऐसा है पीएच है जिसमें अगर किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी एक्वस सोल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 is there, that means it is neutral in nature, neither it is acidic nor it is basic. Now
don't ask absurd questions. You are absurd question to the relevant questions पूछो. So और थोड़ा वेट करो. Let me explain. I will give you some time afterwards. Towards the end I will give you time. उस समय पूछो मुझसे. So अब 7 जो है आपका न्यूट्रल वैल्यू है. 7 से नीचे यानी कि 7 से नीचे क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा. यहाँ अगर आपकी पीएच वैल्यू किसी भी सोल्यूशन की घटती चलती है 1 तक, तो वो एसिड माना जाएगा. 7 से ऊपर वाले जिसके पीएच वैल्यू होंगे 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके बेस माने जाएंगे. अच्छा, जो हाईएस्ट एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू 1 होगा और हाईएस्ट जो एल्कलाइन नेचर होगा वो 14 होगा. यानी NaOH और KOH की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वेरी नियर टू 14. और HCl जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनकी वैल्यू आसपास वही 1 के आसपास. अब जो है आपको ये समझना होगा कि कैसे हम ये पीएच वैल्यू को हम निकालें, कैसे हम पीएच वैल्यू को हम वो करें. तो अब जो है आपको समझना होगा कि ये जो है कैसे हम इसको मेजर करें. इसको मेजर करने के लिए एक खास इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है. खास इंडिकेटर, वो क्या है इंडिकेटर? वो इंडिकेटर है जो इंडिकेटर्स दो क्या होते हैं? which indicates, which tells you that whether the solution is acid or whether the solution is a base. So there are some normal indicators and there are some special indicators. The normal indicators are of three types. That is, one is your litmus paper. Litmus paper are of two types. One is your blue litmus paper, another one is a red litmus paper. ये पेपर फॉर्म में होता है और ये पेपर कैसे बनता है? बहुत खास वेजिटेबल कलर से बनता है. ये वो जो खास तरह के जो पेपर्स लेके उनको कलर करते हैं, उनको हम कलर करते हैं. कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे भी आसपास नॉइज आ रही है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है. अच्छा, तो ये आपके लिटमस पेपर दो होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर. दूसरा आपका हो गया फिनोप्थिलिन. फिनोप्थिलिन एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है. ये भी ऑर्गेनिक होता है. ओरिजिनल कलर क्या है? कलर इज कलरलेस. मतलब उसको आप देखोगे, अगर हम तुमको एक बीकर में फिनोप्थिलिन डाल के दे देंगे, यू विल बी नॉट एबल टू नो वेदर इट इज वाटर और वेदर इट इज फिनोप्थिलिन. तीसरा आपका एक और भी सोल्यूशन है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज. दिस मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज. तो हम जब एसिड, बेस और सॉल्ट को हम जब टेस्ट करते हैं तो एसिड में क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा. फिनोप्थिलिन से चेक करेंगे तो कलरलेस ही रहेगा. मिथाइल ऑरेंज से जब हम चेक करेंगे तो वो पिंक हो जाएगा. बेस को जब हम करेंगे रेड से ब्लू हो जाएगा. फिनोप्थिलिन से चेक करेंगे तो पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज से चेक करेंगे तो येलो हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा और एकदम हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा. तो अब क्या है कि आपका जो पीएच के हिसाब से, अच्छा अब ये इसमें क्या है कि इसमें तुमको जो एसिड है, हर एसिड को तुम चेक करोगे. अगर मान लो लिटमस पेपर से चेक किया वो ब्लू टू रेड हो जाएगा. उसमें ये नहीं बताएगा कि ये एसिड तुम्हारा वीक एसिड है और या ये एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. कौन बताएगा? ये बताएगा एक खास तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये बना हुआ है बाय मिक्सिंग अप मेनी इंडिकेटर्स टुगेदर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर with pH. How does it? It will do it in this way that when you take this, this is the pH scale from 0 to 14. 7 is the pH value. Now when we are testing it with a universal indicator, you can see color is green. As we move to 14, the basic nature, alkaline nature
nature increases. And as we move from 7 to 1, acidic nature, acidic increases. तो जैसे हम we will move from green to आपका 14 की तरफ, first 7 to 9 के बीच में जो भी रहेंगे pH scale, they will show blue color. 9 to 11 जो भी रहेंगे they will show indigo color. 11 से 13 तक जो भी रहेंगे they will show violet color. यानी कोई भी अगर universal indicator से अगर आपका violet color दिखाता है, that means it is highly acidic. Similarly, अगर हम नीचे जाएंगे एसिडिटी की तरफ, एसिडिक नेचर जहां इंक्रीज करता है, ग्रीन 5 to 7 जो होगा, जो लाइट वेरी माइल्ड एसिड्स आर देयर, दे विल शो येलो कलर, मॉडरेट एसिड्स विल शो पिंक कलर, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल शो रेड कलर. सो रेड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वायलेट इज स्ट्रॉन्ग बेस, पिंक इज मॉडरेट एसिड, इंडिगो इज मॉडरेट बेस, येलो इज very weak acid, blue is weak base, and green is, this is neutral. This is all about your universal nature. Now let us see what is a salt. Now salt, when we talk about, as I told you, that acid base, they are reacted, you get a salt water. This has to be neutral in nature. This salt has to be neutral nature. This cannot be acidic or not be basic. How it happens? See, acid is made up by, look here, it is made up by hydrogen and non-metal. Base is made up by metal and OH. OH is the negative ion, H is the positive ion. So this metal and non-metal actually makes the salt. This metal and non-metal, it makes actually the base. Now in this case, we can also say that salt is actually the metal and non-metal. This is metal ion and this is non-metal ion. And this metal ion should not be H ion. And this non-metal ion should not be OH ion. Never. अगर देखो, metal and non-metal. Salt is made up by the combination of metal and non-metal. And this metal should not be H ion. अगर ये H ion होता तो ये acid कहलाता. और ये जो non-metal हमको मिलता है, ये कभी भी OH नहीं होना चाहिए. अगर ये OH होता तो ये base कहलाता. Therefore, this is actually a neutral compound. This is a neutral compound. कैसे ये बनता है? How it is made? See, actually what happens when we talk about an acid which is made up by hydrogen and non-metal, ये जो hydrogen atom होता है, this is replaceable. Similarly, आपका ये जो हमने लिया, अच्छा, चलो अब ये दिखाएं. So ये जो hydrogen ion है, this is a replaceable. So sometimes we define acid like this also, that a compound which contains replaceable hydrogen ion when it is dissolved in water is known as an acid. तो अगर मान लीजिए कि ये replace होता, अच्छा replace किससे होगा? Replace का मतलब when a teacher enters the class, you stand in your place and you offer the seat, and I replace you. So replacement, ये replacement किससे होगा? ये replacement होगा किसी मेटल आयन से या अमोनियम आयन से. अब यहाँ पे देखो, इसका मोनो बेसिक एसिड है, ओनली वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है. अगर ये सोडियम से, मान लो एग्जांपल हमने ले लिया, सोडियम से रिप्लेस होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है. एंड दिस इज बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी H ion in it. This will be normal salt. So normal salt जब आपका आयोनाइज करेगा तो this will only give metal ion which is not hydrogen ion and non-metal ion which is not OH, and this is normal salt. In other hand, suppose if I take the example of H2SO4, what is the basicity of H2? इसके पास कितने हाइड्रोजन आयन है रिप्लेस होने लायक? 2. अब पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, द रिप्लेसमेंट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल रिप्लेसमेंट। और अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट। मान लीजिए सोडियम आता है और तो बोलता है कि भैया तो हाइड्रोजन मुझे तुम्हारी जगह लेनी, रिप्लेस करना है तुम्हें, और एक हाइड्रोजन को छोड़ देता है, मुआफी कर देता है, एक सोडियम आ जाता है, तो द फॉर्मूला विल बी NaHSO4। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये आयोनाइज होगा, इसमें एक सोडियम निकलेगा, एक H निकलेगा और एक सल्फेट आयन निकलेगा। यानी कि इसमें दो पॉजिटिव आयंस निकल रहे, टू कैटायंस निकल रहे। टू कैटायंस जब निकलेंगे तो that means it is not an acid, because along with hydrogen one alag separate sodium ion is also present, and this is because in this salt H ion is present. This will be called as acid salt. तो आपने दो तरह का सॉल्ट पढ़ा, एक पढ़ा नॉर्मल सॉल्ट जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता है, एक पढ़ा एसिड सॉल्ट जो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनता है। यहाँ पे अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है तो ये Na2SO4 बनेगा, this will be a normal salt. Now let us see when we take, so in this case, in this way we can also say that those who are di-basic acid, for example H2SO4, they will give you two series of salt. One salt will be acid salt NaHSO4, another will be normal salt Na2SO4. Let me take the example of a tri-basic acid H3PO4. H3PO4 के पास तीन हाइड्रोजन आयंस हैं जो रिप्लेसेबल हैं। तो एक आपका इसमें दो बार पार्शियल हो सकता है। पहली बार में सिर्फ एक सोडियम आयन पिकअप करेगा, तो द फॉर्मूला विल बी NaH2PO4। दूसरे में ये एक H और दान कर देगा, दूसरा सोडियम आ जाएगा तो Na2HPO4, यानी ये भी एसिड सॉल्ट है, दिस इज ऑल्सो एसिड सॉल्ट और दिस इज ऑल्सो एसिड सॉल्ट। और ये जो है जब आपका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि तीनों हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, तो Na3PO4. So how many series of acid it is giving? It is tri-basic, therefore it will give you three types of salts or three series of salts. Di-basic will give you, it contains two hydrogen ion, replaceable hydrogen, it gives you two series of salts. Monobasic acid just give you one normal salt. ये आपको ध्यान ये पूछा जाएगा। So you have what is normal salt and what is acid salt. The third type of salt is the basic salt. Now basic salt is actually made up by a base. As I told you, base is metal and hydroxyl. And this, if you take a mono acidic base, and this I am taking the example of diacidic base. So monoacidic base has got only one hydroxyl ion, whereas diacidic base has got two hydroxyl ions. Now this will be replaced. This will be replaced by whom? This will be replaced. In this case, you have seen in the acid it is replaced by a metal, right? So in base, it will be replaced by a non-metal. Let me take the example of chlorine. Suppose ये हाइड्रोक्सिल को क्लोरीन रिप्लेस करता है, तो एक ही नॉर्मल सॉल्ट बन सकता है NaCl, यानी मोनो एसिडिक नॉर्मल सॉल्ट ही दे सकता है, और यहाँ पे अगर हम मोनो बेसिक एसिड लेंगे ये भी सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट ही। Let us see for the diacidic base, यहाँ पे दो है, तो there are chances ये पार्शियल हो रहा है और ये कंप्लीट हो रहा है। हमने फिर यहाँ पे एक नॉन मेटल को लिया है, लेट अस टेक द नॉन मेटल ऑफ Cl को ही लिया, मैंने Cl ही एग्जांपल में लिया। यहाँ पे जब ये पार्शियल करेगा तो एक OH को यहाँ पे छोड़ दिया, सिर्फ एक Cl ने यहाँ पे उसका प्लेस लिया, तो द फॉर्मूला विल बी CuOHCl, ओके, CuOHCl. So CuOHCl you will call it as basic
कॉपर क्लोराइड. दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. क्योंकि इसको हम जब डिसॉल्व करेंगे पानी में, यू विल गेट अ मेटल आयन, करेक्ट. दो नॉन मेटेलिक आयंस निकलेंगे, एक ऑक्सिल आयन निकलेगा और एक क्लोरीन आयन. चूंकि अगर इसमें सिर्फ ये नहीं रहता, अब तो ये इसको सिर्फ बेस कहते हैं, लेकिन दोनों आयंस निकल रहे हैं, तो ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा. ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा क्योंकि इसमें OH भी मौजूद है. अच्छा, कंप्लीट अगर रिप्लेसमेंट होता है Cl से, तो यू विल गेट अ नॉर्मल सॉल्ट. ये आपका नॉर्मल सॉल्ट. तीन ही सॉल्ट आपको पढ़ना है, डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना है, मिक्स सॉल्ट नहीं पढ़ना है. सिर्फ आपको पढ़ना है नॉर्मल सॉल्ट, आपको पढ़ना है एसिड सॉल्ट, ये एसिड सॉल्ट, और आपको पढ़ना है बेसिक सॉल्ट. बस तीन. एसिड सॉल्ट कब बनेगा? जब आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड सोल्यूट. बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम अ बेस होगा, तब आपका बनेगा. एसिड को रिप्लेस करेगा मेटल, बेस को रिप्लेस करेगा नॉन. ठीक है, ये आपका हो गया. अब आइए प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट्स के. सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी सिंपल. चूंकि मैंने बोला है कि सॉल्ट्स आपके क्या हैं, दीज आर न्यूट्रल इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि उसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा. दीज कैटायंस आर एनायंस आर क्लिंग्ड विथ ईच अदर विथ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कंडक्टिविटी दिखाएगा इन इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वा स्टेट में. अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे पानी में, ये पानी में डिसॉल्व भी होगा. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं करेगा. नॉन वोलेटाइल होगा. नॉन वोलेटाइल यानी कि ये वेपराइज नहीं होगा, कपूर की तरह, कैंफर की तरह हवा में नहीं उड़ जाएगा. ये बहुत क्रिस्टल्स डेंसिटी बहुत हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इनको हम पाएंगे. अच्छा, अब हमने बोला कि ये सॉल्युबल होगा. सबकी सॉल्युबिलिटी, सारे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी एक नहीं होगी. यू कैन नॉट say that all of them are going to be soluble in the same way. Soluble किसको हम बोलेंगे? मान लो कि तुमने 100 ml वाटर लिया. 100 ml वाटर को 298 केल्विन टेम्परेचर हमने मेंटेन किया. अगर उसका एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. एक बीकर में ले लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर, और हमने ढेर सारे बीकर्स ले लिए, 5-6 बीकर्स ले लिए, 5-6 हमने सॉल्ट्स ले लिया, अलग अलग सॉल्ट्स ले लिया. जो सॉल्ट एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 298 डिग्री सेल्सियस, then it will be called as soluble salt. उनको हम soluble मान लेंगे, क्या ये soluble है. अगर 1 ग्राम से नीचे यानी 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक soluble है, 1 ग्राम तक नहीं हो पा रहा है, 0.1 से 1 ग्राम, उसको हम मानेंगे पार्शियली सॉल्युबल. उसको हम फुल्ली सॉल्युबल नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं मानेंगे. 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक those who are soluble in 100 gram of water at 298 Kelvin temperature. Yes, 298 Kelvin, not more. You cannot, whenever I have told you in class 9, I don't know you remember or not, that you have to, whenever you are talking about the temperature for mathematical values and all, you cannot say centigrade, you have to convert it into Kelvin. If you wish to find out how much centigrade it is, you can subtract it by 273 Kelvin, find out. So 298 Kelvin, अगर 0.1 से 1 ग्राम है, that will be called as partially soluble salt. अगर इससे भी कम है, 0.1 ग्राम से भी कम है, तो they will be called as negligibly soluble या insoluble. Inform one. Insoluble category में हम डाल. So there are 3. Now this solubility actually changes. When you change the temperature, the solubility also changes. You have seen in class 9 in water chapter. It changes. But we don't have to study about that, whether what happens. So in a general way, we see that the solubility of salts increases with some of them as you increase the temperature, and
and with some we see it increases and then it becomes stagnant. In some we see it increases and then it decreases. So it varies from salt to salt. That is not there in the books. Now the next topic is your hydrolysis. Acha. Now when we say about solubility, one thing more, that all the salts, they are made up by two parts. One is metal, other is non-metal. Now all of them, they are not soluble in the same way. Let us see which are soluble and which are not soluble. Let us, and this is very, very important chart. You have to mug it up very well. See here, all salts which are made up by sodium, potassium and ammonium. This is ammonium. This is ammonium. That means जिसका पहला है ये, अगर कोई सॉल्ट बना हुआ है और ये पहला पार्ट, यहाँ तो कुछ भी ले लो, पहला पार्ट अगर तुमने सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, अमोनियम लिया, they all are going to be soluble. No matter whatever you take in the second part. Non-metal कुछ भी ले लो. Second, सारे oxides of metals, they are insoluble. सारे oxides. Exception क्या है? Exception यही होगा. Sodium oxide, potassium oxide, they will be soluble. अमोनियम ऑक्साइड होता नहीं है तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्युबल होगा, बाकी सारे इनसॉल्युबल होंगे. यानी कि आपको अभी जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम और सोडियम के नीचे जितने भी हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सारे इनसॉल्युबल होंगे. सारे नाइट्रेट्स, नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला? NO3. तो सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला है? NO2. तो सारे नाइट्रेट्स और सारे नाइट्राइट्स ये सॉल्युबल हैं. इसमें कोई भी ऐसा नहीं एक्सेप्शन है. सारे क्लोराइड्स क्या है? Cl. कोई भी मेटल ले लो, क्लोराइड अगर यहाँ पे कोई भी मेटल ले लो, नाइट्राइट ले लो, जिंक नाइट्राइट, कॉपर नाइट्राइट, जिंक नाइट्राइट, आयरन नाइट्राइट, कुछ भी ले लो, सब सॉल्युबल हैं. सारे क्लोराइड्स दे आर सॉल्युबल, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं. एंड चिल्ड्रन, एक्सेप्शंस आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है एक्सेप्शन? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, ये मर्क्यूरस बोलोगे इसको, ये मर्क्यूरस है. मर्क्यूरी का दो वैलेंसी होता है, एक है मर्क्यूरस, एक है मर्क्यूरिक. सो मर्क्यूरस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 और लेड क्लोराइड PbCl2, जिसमें कि लेड क्लोराइड थोड़ा स्पेशल है, इसको हम गर्म कर देते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है. सारे ब्रोमाइड्स सॉल्युबल हैं, सारे आयोडाइड सॉल्युबल हैं, सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं. इसमें भी एक्सेप्शन है, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट. ये भी आपका नोट्स में दिया जा चुका है, किताब में भी है. सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होंगे. कौन सा सॉल्युबल होगा? फिर वही सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होगा. सारे सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होगा एक्सेप्ट दीस थ्री. सारे सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सल्फाइड. सारे फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम. ये टेबल आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है. अब आइए हाइड्रोलिसिस किसे बोलते हैं. हाइड्रोलिसिस पहले न्यूट्रलाइजेशन समझो. न्यूट्रलाइजेशन में अगर हमने एसिड लिया और बेस लिया और दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग लिया, ये भी स्ट्रॉन्ग लिया, ये भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो मुझे सॉल्ट मिलेगा जो परफेक्टली न्यूट्रल होगा और वाटर मिलेगा. यानी ये पूरा सोल्यूशन जो है, ये पूरा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा. लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और बेस को बहुत वीक लिया तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये एसिडिक बनेगा. क्यों? क्योंकि इसमें H आयंस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया. ये हाइड्रोलिसिस कहलाएगा. अगर हमने ये एसिड को वीक ले लिया, बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो आपका जो सोल्यूशन पूरा बनेगा वो बेसिक होगा, क्योंकि इसमें OH आयन बहुत ज्यादा मिलेगा. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज अनवांटेड प्रोसेस. इसको हम रोकते हैं, इसको हम नहीं चाहते. हम हमेशा जो कुश्ती होती है, दंगल होता है, तो बराबरी में करते हैं. अगर मान लो कि उसमें एक पार्टी इसमें बहुत मजबूत है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा उसी पार्टी के फेवर में होगा. एसिड बहुत स्ट्रांग है तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, बेस बहुत स्ट्रांग है तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा. तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? हमको बराबर की जो मॉडरेट जो आप कॉन्सेंट्रेशन वाले, बराबर किस कॉन्सेंट्रेशन वाला एसिड लेंगे
और बराबर का कॉन्सेंट्रेशन वाला बेस हम, यू कैन नॉट वैरी. नाउ let us see some other characteristics of your salts. That is, there are some salts which, while formation of the crystals, they accumulate some water of molecules. This water of molecules are called as water of crystallization. When you heat them up, what happens? This water of crystallization is gone. They become anhydrous in nature. Now, naturally, which collect this water of molecules, and this water you cannot see. You will not see the salt as a damp form. This water of crystallization actually gives them a crystalline form. अगर ये आप उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन छीन लेंगे तो वो भुरभुरा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन नेचर खत्म हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी, उसका जो एक स्मूथ टेक्सचर है वो खत्म हो जाए. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नेचुरली प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. इसको अगर हमको एनहाइड्रस फॉर्म में लेना है तो आइदर यू हीट इट. कुछ सॉल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली जब उसको वाटर आप उसमें छोड़ते हैं, जैसे अगर आप वेदांग श्रीवास्तव, व्हाट इज दिस? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. वेदांग श्रीवास्तव, आई डोंट नो व्हाट इट इज. ओके, यू आर डिस्टर्बिंग मी. सो कुछ सॉल्ट्स होते हैं अगर आपने नेचुरली एयर में उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो व्हाट हैपेंस? इट gives away its moisture, water of crystallization, and they are called as efflorescence. For example, your washing soda Na2CO3 आप अगर कोई निरमा उरमा ले लो, एक पेपर में छोड़ के हवा में छोड़ दोगे तो जब डालोगे निरमा पेपर में तो बहुत स्मूथ होगा, बहुत मुलायम होगा, और अगर आप 1 घंटा छोड़ के रख दोगे तो एकदम कड़ा कड़ा कैसे क्रम्बल फॉर्म में हो जाएगा. इट विल लूज इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. दैट इज बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो आप उस ऐसे तो ड्राई होते हैं, but as you leave them in air, it accumulates, it absorbs the moisture of the air. They are called as hygroscopic. Hygro word means water, scopic means affection. So they absorb water from that, and such are called as conch H2SO4, P2O5, CaO and silica gel. इसमें से कुछ बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इतना ज्यादा कि दे मेक अ शरबत, इतना ज्यादा, such as your NaOH, KOH, MgCl2, CaCl2, FeCl3. They are very, very highly hygroscopic. So they are called as deliquescence. So deliquescence is a property. Deliquescence are the salts. Now some are the salts, those who are hygroscopic, they are also used to dry other. Don't ask. Salt is why it will taste salt. It is because it tastes. NaCl, if you take something else, it will not taste as a salt. So drying agents, some of the hygroscopics, if they are kept, जैसे मान लीजिए कि चूंकि अंदर ये नेचर है कि वो किसी भी सॉल्ट को ड्राई कर सकते हैं, तो उनको एज अ ड्राइंग एजेंट हम यूज करते हैं. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी और सॉल्ट के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खींच के निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में डिफरेंस है, टेबल दिया हुआ, इसको याद कर लीजिए. आई थिंक द लेसन इज कंप्लीट. कुछ और बचेगा तो हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे. एंड चिल्ड्रन, एनी क्वेरी, बॉयज बहुत कम भेजते हैं, क्वेरीज नहीं भेजते हैं. बाद में क्लास में हमारा सिर खाओगे तो बहुत गलत होगा.